Hello students, my name is Gargi and in this video lecture we are going to start our chapter The Making of a Scientist. So this chapter is about Richard Albright. Richard Albright has received a Serial Scholar Award and a Screenplay Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science for him. So उनके लिए जो वर्ल्ड ऑफ साइंस ओपन हुआ, दैट मीन्स द डोर्स दैट ओपन वाज बिकॉज ऑफ बटरफ्लाइज. एक छोटी सी बटरफ्लाई की वजह से उनके लिए इतना बड़ा साइंस का वर्ल्ड खुल गया. तो वो कैसे हुआ, उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, फिर उन्होंने कैसे कैसे स्कूल से फिर कॉलेज तक एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज एक्सपेरिमेंट्स, कैसे सारी चीज़ें हुई. सो ये एक सीरीज ऑफ हिज लाइफ है कि कैसे वो आगे बढ़ते गए धीरे धीरे और ही बिकेम दिस सक्सेसफुल साइंटिस्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. कि कैसे सेल्स वर्क करती हैं. उन्होंने एक नई थ्योरी निकाली कि कैसे सेल्स वर्क करती हैं. Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. So this was a magazine जिसमें उनका आर्टिकल प्रिंट हुआ था that how cells work. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. So this journal, it was very prestigious, इनको बहुत famous journal थी. तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को उन्होंने पब्लिश किया हो और इसको कंपेयर किया है किससे कि यू मेक द बिग लीग्स. आप किसी भी बिग लीग में जाओ और वहाँ पे आप पहली बार में ही होम रन मार दो. सो इट्स लाइक दैट. वहाँ पे आर्टिकल प्रिंट होना वाज लाइक दैट. For Richard Albright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. So उनकी achievements की starting ही थी. उसके बाद उनको लाइफ में इतने सारे अचीवमेंट्स मिले, इतने सारे अवार्ड्स मिले और ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? सिर्फ और सिर्फ एक बटरफ्लाई से. उनकी ये सारे अचीवमेंट्स का क्रेडिट किसे जा सकता है? बटरफ्लाइज को. An only child, Albright grew up north of Reading, Pennsylvania. So he was born in Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there. He said, I certainly couldn't play football or basketball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. So it was a small town, there wasn't much to do. बहुत सारी चीज़ें नहीं थी ऐसी जो वो कर सकते थे, बट वो एक चीज़ कर सकते थे, वो चीज़ें कलेक्ट कर सकते थे एंड इट बिकेम हिज हॉबी. उनकी हॉबी बन गया चीज़ों को कलेक्ट करना, क्योंकि वो बेसबॉल या बास्केटबॉल नहीं खेल सकते थे. क्यों? क्योंकि वो अकेले तो कैसे ही खेलते, उनके पास फ्रेंड्स नहीं थे या वो ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते थे लोगों से और बहुत छोटा सा टाउन था रीडिंग. सो वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ करने को नहीं था. सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स. सो ही डिड एंड डिड ही एवर. Beginning in kindergarten, Albright collected butterflies with the same determination that he had marked all his activities. He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing online. So he started collecting things. He collected fossils, coins, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, stones कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे. मेन फोकस हमारा बटरफ्लाइज पे होगा. वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे एंड ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो. उनको स्टार्स देखना बहुत पसंद था. वो कई बार रात भर स्टार्स देखते रहते थे. सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल दैट एंड फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड a driving curiosity along with a bright mind. He was very curious and he was very sharp also. So that helped a lot.
He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments, and helped him in many other ways. So a very important part that was played by his mother. उनकी मदर ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था उनकी लाइफ में. उन्होंने उनको इनकरेज किया ये सारी चीज़ें करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए चीज़ें. वो उनको मटेरियल ला के देती थी, उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी. एंड शी बॉट हिम ऑल दोज मटेरियल्स, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स उनको खरीद के देती थी ताकि उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता रहे, ताकि उनके पास अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा. तो शी वॉज अ रियली बिग पार्ट ऑफ हिज सक्सेस, या फिर उनके इनिशियल जो उनमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था उनकी मदर का. It was his only I was his only companion until he started school. His mother said after that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. So his mother says that उनके लिए Richie बहुत important था. वो और उनके लिए वो थे और उनके लिए उनकी मदर थी, वो दोनों ही थे क्योंकि his father died when he was in 3rd grade. So उन दोनों का एक दूसरे के लिए जो लगाव था वो बहुत ज़्यादा था. And she put all her focus on him. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. So she says अगर उनके पास कुछ करने को नहीं होता था तो उनके लिए काम ढूंढ देती थी. काम ढूंढ देती थी से मतलब फिजिकल वर्क नहीं, बट समथिंग जो उनके माइंड को और ज़्यादा शार्प करे, उनके माइंड को एक्टिव कर दे. तो ऐसे काम वो उनके लिए ढूंढा करती थी, कोई फिजिकल वर्क नहीं ढूंढती थी. एंड ही वॉज ऑल्सो ईगर टू लर्न. उनको पढ़ना और लर्न करना, चीज़ें, नई नई चीज़ें देखना, नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस होना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था. एंड लर्न he did. He earned top grades in school on everyday things. He was just like every other kid, his mother said. By the time he was in the 2nd grade, Albert had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. Okay, so he was a really good student. उनके grades बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे. And by the time he was in 2nd grade, जब तक वो 2nd grade में आए, उन्होंने 25 स्पीशीज़ जो उनके होम टाउन के आसपास थी वो सारी उन्होंने कलेक्ट कर ली थी. एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ दोज बटरफ्लाइज जो उन्होंने कलेक्ट की थी. नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इन्हें लर्न करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट या जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो सारी बटरफ्लाइज के नाम है जो उन्होंने कलेक्ट कर लिया था. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. So, his mother, she got him this book called Travels of Monarch X, and उनको पहले ये लगा था कि उन्होंने जितनी 25 बटरफ्लाइज जो उनके होम टाउन के आसपास है वो तो कलेक्ट कर ली. अब बहुत छोटे थे, लाइक ही वाज इन 2nd grade, तो अब कहीं बाहर तो जा नहीं सकते हैं ट्रैवल करके कि कहीं भी चले गए और जो और स्पीशीज़ हैं बटरफ्लाइज की वो उनको कलेक्ट किया. सो ही थॉट दैट अब उनका जो करियर है बटरफ्लाई कलेक्टिंग में वो अब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो अब क्या करेंगे. बट देन हिज मदर गॉट हिम दिस बुक एंड इट ओपनड अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम. And that book, what was that book about? Which told how monarch butterflies migrate to Central America. कैसे monarch butterflies जो हैं वो Central America में migrate करके जाती हैं. ठीक है. So this book was about that and it opened a world of science for him. So at the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. Book के end में there was this invitation जिसमें जो रीडर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था बटरफ्लाइज का माइग्रेशन स्टडी करने के लिए. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर
Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Abbott's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Abbott was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. So what was he supposed to do? He was supposed to tag these the wings of the butterflies with light adhesive. उनको टैग लगाने थे बटरफ्लाइज पे, और जब वो माइग्रेट करके कहीं जाएंगी सो दे विल नो कि कहाँ से माइग्रेट करके आई है. ठीक है, सो दैट वाज द रीडर्स वर सपोज टू डू, एंड दैट इन्विटेशन फ्रॉम was Dr. Urquhart, very important in this chapter. कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट इज वन ऑफ देम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कैनेडा. सो उनकी मदर ने डॉक्टर अर्कहार्ट को एक लेटर लिखा, एंड सून एब्रेट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. और जिसको भी वो टैग मिलेगा वो उसे डॉक्टर अर्कहार्ट को भेजना था. ठीक है. The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. जो रीडिंग में जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन है, इट लास्ट फॉर अराउंड 6 weeks समर्स में. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Everett was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. So he thought that अगर मैं एक एक करके collect करूँगा, it will take a very long time. बहुत लंबा टाइम लग जाएगा एक एक बटरफ्लाई कलेक्ट करने में, पहले ढूंढो, पकड़ो, उसको कलेक्ट करो. सो व्हाट ही डिड वाज ही स्टार्टेड रेजिंग द बटरफ्लाइज. वो अपने बेसमेंट में ही उन्होंने बटरफ्लाइज रेज करना शुरू कर दिया. सो व्हाट ही डिड वाज ही टुक अ फीमेल मोनार्क एंड ही टुक हर एग्स, उसके एग्स लेके, एंड ही स्टार्टेड रेजिंग देम. उनको हैच करवाने लग गया, उनको रेज करवाने लग गया. एंड दैट होल साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड टू adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. फिर जब वो बटरफ्लाई जो एग से जब बटरफ्लाई बन जाती है तो उसके बाद वो उसको टैग करते थे, and he used to let them go. For several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. और बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक उन्होंने ये चीज़ की, बटरफ्लाइज रेज करना अपने बेसमेंट में बहुत टाइम तक उन्होंने किया. thousands of butterflies were raised in his basement. Eventually I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback. So ultimately he became fed up. वो बहुत, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इसमें अब ज़्यादा, क्योंकि वो एक ही चीज़ बार बार करते जा रहे थे. तो he was losing interest in that because it was tedious. Tedious means very dull. बहुत डल होता जा रहा था ये, और ज़्यादा उनको फीडबैक भी नहीं मिल रहा था इसमें. सो he was losing interest in that. Albright said, in all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. तो वो बताते हैं कि इतनी thousands of butterflies उन्होंने रेस की, उन्होंने रिलीज की, बट उसमें से 2 बटरफ्लाइज रिकैप्चर हुई, और वो भी ज़्यादा दूरी पे नहीं. इट वॉज ओनली 75 माइल्स के अंदर ही उनको वो दोनों बटरफ्लाइज कैप्चर हो गई. मतलब वो ज़्यादा दूर तक भी नहीं जा पाई. सो कोई ज़्यादा फीडबैक भी नहीं आ रहा था, एंड द वर्क वॉज बिकमिंग टीडियस. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. अब जब वो 7th grade में थे तब उन्हें एक्चुअल में पता चला कि साइंस होती क्या है. ठीक, अभी तक तो वो क्या कर रहे थे, बटरफ्लाइज रेस कर रहे थे. उनका एक छोटा सा वर्ल्ड था जिसमें वो उन्होंने अपना साइंस बनाया हुआ था और सारी चीज़ें कर रहे थे. बट देन सडनली ही पार्टिसिपेटेड इन अ काउंटी फेयर, साइंस फेयर, एंड ही सॉ ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स. लोगों के आइडियाज़ देखे उन्होंने, सारी चीज़ें देखी, तो उनको एक नए तरीके से उन्होंने साइंस को देखा. He entered a county science fair and lost. So he entered it, but first time जब उन्होंने participate किया तो वो हार गए.
It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Everett said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. So when he lost, he felt bad. Obviously, अगर उन्होंने participate किया है तो he was expecting to win. बट ना वो जीते और ना उनको कुछ मिला, बाकी सबको कुछ ना कुछ मिला एंड ही डिडंट गेट एनीथिंग. तो ही बिकेम सैड. बट देन ही रियलाइज्ड कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, हिज एक्सपेरिमेंट वाज, उन्होंने फ्रॉग टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया था. सो ही रियलाइज्ड कि बाकी लोगों के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दे आर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ रियल है. वो उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले नहीं किया है, कुछ वहाँ पे सिर्फ लाकर रख नहीं दिया है कि आओ और आकर देख लो. उन्होंने तो सिर्फ यही किया. दैट्स वाई ही लॉस्ट, कि बाकी लोगों के एक्सपेरिमेंट्स रियल थे, उन्होंने कुछ ना कुछ करके बताया था, ठीक है, वर्किंग एक्सपेरिमेंट्स थे, बट उन्होंने तो एक डिस्प्ले कर दिया. सो ही अंडरस्टूड कि टू विन आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. Already the competitive spirit that drives Richard Albright was appearing. I know that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I've been doing in the past several years. So now this competitive spirit, it started showing. उनमें दिखने लग गई वो. एंड ही न्यू कि अभी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे जीतना है तो मुझे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, मतलब कुछ वर्क हो, रियल एक्सपेरिमेंट हो. सो अब उनको वो स्टार्टेड थिंकिंग के कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लूँ. बट उन्होंने तो आज तक एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए थे, इंसेक्ट्स पे किए थे, तो उन्होंने सोचा इसी पे कुछ ना कुछ मुझे नया करना चाहिए. So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Albright busy all through high school and led to prize projects in country and international science fairs. So उन्होंने Dr. Urquhart को लेटर लिखा and he asked him for ideas. कि आप मुझे कुछ सजेशन दो, मुझे कुछ आइडियाज दो ताकि मैं साइंस फेयर में पार्टिसिपेट कर सकूं ज़्यादा अच्छे से. एंड डॉक्टर अर्कहार्ट रिप्लाइड, और उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ भेजे, इतने सारे कि वो पूरे हाई स्कूल, थ्रू आउट हिज हाई स्कूल वो इतना बिजी रहे और उन्होंने इतने सारे प्राइजेस जीत लिए उन आइडियाज़ के थ्रू. लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. उन्होंने इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी बहुत सारे प्राइजेस जीत लिए. फॉर हिज 8th grade project, Albright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. So 8th grade में उनका पहला जो प्रोजेक्ट था वो था कि एक वायरल डिजीज है जो मोनार्क कैटरपिलर्स को मार देता है. हर कुछ साल में बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट वायरल डिजीज. सो he started working on that. Albright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. So the first time he won was this experiment where he showed that he had conducted this experiment जिसमें उन्होंने मोनार्क कैटरपिलर और एक बीटल, जो उनको लगता था कि वो जो बीटल है वो एक ऐसा डिजीज कैरी कर रही है जो उन कैटरपिलर्स को मार देता है. बट उनका कुछ रिजल्ट नहीं मिला इस चीज़ का. बट द कंडक्शन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया उसकी वजह से ही वो जीत गए. देयर वॉज नॉट एग्जैक्टली अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, बट उनका वो एक्सपेरिमेंट करना ही इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव था कि वो उसकी वजह से वहाँ से जीत गए. नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. ओके, so this one, the next year, the experiment he conducted was that theory that viceroy butterflies जो होती हैं वो monarch butterflies को copy करती हैं. अब वो क्यों करती हैं? The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अब theory ये थी कि viceroy monarch को copy क्यों करती हैं?
क्योंकि मोनार्क का टेस्ट अच्छा नहीं होता, बर्ड्स को उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बर्ड्स क्या होती हैं, बटरफ्लाइज को खा जाती हैं। तो बटरफ्लाइज के लिए वो टेस्ट अच्छा, जो बर्ड्स होती हैं उनको मोनार्क्स का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो वाइसरॉय क्या करती है, उनको कॉपी करती है ताकि वो भी बच सके। So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. तो जितना वो मोनार्क के जैसे दिखेंगी, जितना वाइसरॉय मोनार्क्स के जैसे दिखेंगी, उतने ही कम चांसेस हैं कि बर्ड्स उनको खा जाएंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मोनार्क बटरफ्लाई है एंड दे डू नॉट टेस्ट गुड, तो वो इसलिए उनको छोड़ दें। Albright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. अब एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था कि बर्ड्स मोनार्क को खाएगी या नहीं। He found that a starling would not eat ordinary bird food. उन्होंने जो starling is a bird, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि स्टार्लिन जो है वो ऑर्डिनरी जो बर्ड फूड होता है उसको नहीं खा रही है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, उसको जितनी भी मोनार्क्स मिल रही है वो उसको खा लेगी, बट वो बर्ड फूड को नहीं खा रही है। Albright said later research by other people showed that viceroys probably do copy monarchs. Albright ने बोला कि बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे उन्होंने एक्चुअल में ये बताया कि वॉइसरॉय करती हैं कॉपी मोनार्क्स को, ये बात सच है। This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. और ये जो प्रोजेक्ट था वो जूलॉजी में फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट आया एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और थर्ड पोजीशन मिली इसको ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में। सो इस लेक्चर में हम इसे यहीं तक करते हैं एंड वी विल कैरी ऑन दिस लेक्चर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर को हम कैरी ऑन करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग तब तक इसको देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए ना। आई होप आपको समझ में भी आया होगा बहुत सारी चीज़ें कि कैसे उनकी अर्ली लाइफ में पहले वो कैसे थे, देन हाउ ही स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन साइंस एंड साइंस फेयर्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।